Hello students. Okay, last time we have discussed minors and cofactor of a matrix. So you all know minors are the determinant which are obtained by deleting ith row and jth column of a element Aij. And after that, we have done cofactors. Cofactors are denoted by Aij. And that formula you all know that cofactor Aij is equal to minus 1 raised to power I plus j into Mij. That is, if you know minor, then you can find cofactors. So after that, today we will use here cofactors to find the adjoint of a matrix. So see here, what do you mean by adjoint of a matrix? The adjoint of a square matrix A, keep this thing in mind. The adjoint of a square matrix, adjoint is defined only for a square matrix A, is equal to what? A equal to Aij of order n by n is defined as transpose of the matrix Aij. Aij means cofactors. So first of all, you have given a matrix whose order is n by n. Then you will find the cofactors and then transpose of the cofactor, matrix obtained by the cofactor, transpose of that is called the adjoint of a matrix A and denoted by adjoint A. So see here, adjoint A. For example, A is this matrix A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3. So adjoint A means transpose of this matrix. You know what is the cofactor of A11? That is denoted by A11. Cofactor of A12 denoted by A12, capital A12, and then cofactor of A13, capital A13. So transpose of this matrix, you can also denote like this. If you don't not want to write this, then you can write like this. That is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. These are cofactors and matrix obtained with the help of cofactor. Then take the transpose of that. That is called adjoint A. So now see, first row become column, and then second row become, see here, second column, and third row become third column. You all know what is the transpose of a matrix. If you interchange the rows into column and column into rows, you will get a new matrix that is called the transpose. So here is a simple example for you. So let us see what we can, how we can find the adjoint of A. तो बेटा मैं एक बार फिर कह दूं, क्लियर कर दूं, adjoint आपके लिए बिल्कुल सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल find the cofactor and then make the matrix of cofactor and then find their transpose. You will get adjoint A. Very simple. See here. Next. So adjoint A for A. Find adjoint A for A. A is given. This one is given. So how to find the adjoint? So first of all, you know how to find the cofactor of 2. So what is the cofactor of 2? 4. Clear?
And what is the cofactor of 3? 3, which element is this? A21 तो negative आएगा, so it means -1. And cofactor of 1, -3, because this position is 2, 1. So you all know cofactors क्या होते हैं? माइनस, लेकिन विद साइन अगर आप लेते हैं तो वो कोफैक्टर बन जाते हैं. बाय डिलीटिंग कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम, जैसे 2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ये डिलीट कर दिया तो ये माइनर बना 4. लेकिन विद साइन, since your subscript is 1 1 A11, so that is why this one is positive. But in case of 3, subscript is 1 2, so it means if subscript is 1 2, then if you sum this, I plus j become 1 plus 2 minus, so that is why this comes out to be minus. So in this way, you know how to find the cofactor. ये पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है. Now जो आपके पास ये बन गए कोफैक्टर A11 A, अब देखो बेटा यहाँ डायरेक्ट लिख लिया. Yes, you can write one step first of all, that adjoint A is like this. You can write A11 A12 and A21 and then A22. This one is adjoint A. You can write complete formula and transpose of this whole. This one is called adjoint. ये डायरेक्ट लिख लिया इसने. देखो फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया. तो वेरी सिंपल. तो अब आपके पास क्या आ गया? 4 -3 -1 2. इसका ट्रांसपोज आप देखो, वैल्यू पुट करो. A11 4, A12 -1, A21 -3 and 2. और देख लो कितना इजी है. सेम बेस से आप 3/3 के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं. और यहाँ पर बेटा मैं एक बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच भी आपको क्लियर करता हूँ. देखो हुआ क्या, अगर आप इस चीज को देखें क्या हुआ यहाँ पर. ये मेरे पास, अगर आप इसमें 2/2 में स्पेशली देखें, ये मेरे पास A गिवन था, तो ये एक शॉर्टकट बन के आ रहा है क्या, कि इन दोनों एलिमेंट को आपस में चेंज कर. तो ये बन गया देखो 4. ठीक है, ये एलिमेंट इधर आ गया 2 की जगह, और इन प्लेस ऑफ 2 के आ गया. यहाँ 4 था तो 2 आ गया आपस में. और ये जो अदर टर्म्स हैं देखो, ये एज यूजुअल ये 3 थी 1, उनके साइन चेंज कर. बोलने का मतलब बस इसका माइनस लगा दो और इसका भी माइनस लगा दो. तो आपको इन दोनों को इंटरचेंज कर लो और इन दोनों को माइनस लगा दो. आपको सीधा शॉर्टकट वे से क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट. लेकिन दिस वन इज स्पेशली फॉर entrance exam. You can use this shortcut, but here I have told you this step how to do. First of all, find the cofactors and then find the matrix of cofactor, and then third step, find the transpose of them. Then you will get a adjoint A. So very easy, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. अब कंसेप्ट पे आइए. देखो यही शॉर्टकट जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपके पास कि for a square matrix of order 2, especially order 2, given by A equal to A11, A12, A21, A22, क्या करेंगे? मतलब डायरेक्टली अगर एडजॉइंट लिखना है तो जस्ट इंटरचेंज दीज 2 एलिमेंट. इन दोनों को बेटा आपस में इंटरचेंज करो. अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा? A22. ठीक है, और यहाँ आ जाएगा A11. और मैंने कहा ये जो साइड वाली टर्म है, इनमें सिर्फ नेगेटिव साइन लगा लो. इसमें जस्ट नेगेटिव मीन्स माइनस A12 एंड माइनस A21. सो हियर ये जो मैट्रिक्स मिल गई, ये आपके पास क्या मिल गया? एडजॉइंट. दिस वन इज एडजॉइंट. तो बिल्कुल ये देखो, ये बताया आपको. एडजॉइंट A कैन आल्सो बी ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग A11 एंड A22, सब लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड बाय चेंजिंग साइन ऑफ A12 एंड A21. ठीक है, आई थिंक यू हैव क्लियर दिस कंसेप्ट. तो आगे चलते हैं.
ओके, ये देखिए, ये आपस में इंटरचेंज करने और इनके साइन चेंज कर देने। तो ये वो लिख दिया A22, A11 माइनस A12 एंड माइनस A21। तो आई थिंक आप लोगों को 2x2 मैट्रिक्स का कोफैक्टर एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इजी वे मिल गया। एक आपने कंप्लीटली कोफैक्टर की हेल्प से निकाला और दूसरा आपने बिल्कुल डायरेक्ट विदाउट एनी थ्योरम, ठीक है, विदाउट एनी प्रूफ आपको सीधा शॉर्टकट बता दिया। ओके, आगे आपके पास यहाँ पर इसी तरह बेटे आप लोग एडजॉइंट 3x3 मैट्रिक्स का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो हाउ टू फाइंड दी कोफैक्टर ऑफ डेटा। आपको पीछे तो जो लिया गया था स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, तो पहले आप कोफैक्टर निकालेंगे कौन से, A11, A12, A13, देन A21, A22, A23। लास्ट एक्सरसाइज में हमने यही काम किया है, A31, A32, A33। ओके, तो वन मोर थ्योरम इज हियर, जहां पर हमें एडजॉइंट ए की जरूरत पड़ रही है। तो क्या ये थ्योरम बेटा, ये विदाउट प्रूफ है, तो आपने इसको जस्ट समझना है, वेरिफिकेशन आपको जरूर बताई जाएगी। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये कहता है A is any matrix of square matrix of order n, then A into adjoint A equal to adjoint A into A. That is nothing but equal to determinant of A into I. बोलने का मतलब एक आपके पास बेटा A मैट्रिक्स दी हुई है, another one is square matrix adjoint A मिलेगी same order की, तो it means both are square matrix of same order, their multiplication is possible, you can find their multiplication, और जो multiplication आएगी that is nothing but किसके equal आएगी, determinant of A into I। commutative property भी hold करेगी, चाहे A into adjoint A करना या adjoint A into A। generally you know in case of matrix commutative law not hold, लेकिन इस केस में होल्ड करेगा। तो चाहे आप A into adjoint A लिखो या adjoint A into A लिखो, that become determinant of A into I, where I is the matrix of order n। तो you can verify this theorem, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, तो वेरिफिकेशन के लिए देखो इसने ये काम किया, ये आपके पास आया A एग्जाम्पल, जनरल मतलब जनरल एग्जाम्पल A11, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, मैं इसको क्लियर करता हूं आपके लिए। ओके, तो यहां देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स दिया है, देन एडजॉइंट ए क्या होगी, A11, A12 आपको पता है ट्रांसपोज करके आती है, ये होती है फर्स्ट रो, तो अब इसने सीधा ट्रांसपोज करके ही लिखा हुआ एडजॉइंट है। जो कोफैक्टर आती थी ये फर्स्ट रो में आनी थी, ये एलिमेंट फर्स्ट रो के एलिमेंट है कोफैक्टर में, लेकिन अब ये ट्रांसपोज करके लिख लिया, तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया, ये आपका सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, क्या है, ये कोफैक्टर। तो ये कोफैक्टर आते हैं निकालना आपको, तो इट मीन अब क्या करना, इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो यू नो A इंटू एडजॉइंट A, इनको अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो बेटा ध्यान से समझिए क्या मिलेगा आपको, आपको क्या मिलेगा, A11 A, जस्ट आपको ये क्लियर करूंगा मैं, 1 प्लस A12 और आगे क्या मिलेगा, A12 फिर प्लस A13 और आगे क्या मिलेगा, A13। इज इट क्लियर। अब अगर मेरे पास ये मिलेगा फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को, तो ये मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट, और बेटा अगर ये फर्स्ट एलिमेंट मिला जो आगे मल्टीप्लाई करके आएगा, ये स्टेप लिखा नहीं है तो जस्ट आपको बता रहा हूं। तो आपको पता है जब भी पिछली एक्सरसाइज में ही किया है कि जब किसी रो को उसके करॉस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन sum of the product of element of rows and cofactor, that is nothing but equal to determinant A। ये आप लोगों को पिछली बार बताया था, अगर आपको याद होगा
ये दो प्रॉपर्टी मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लियर की थी कि ये डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होगी, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी मैं इसको अभी आपको दिखा भी देता हूं, दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर कर देता हूं। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट ए आएगा। अब जब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए A11 A21 A12 A22 A13 A23, तो बोलने का मतलब ये हुई वैसे सेकंड रो के क्या बने, ये सेकंड रो के कोफैक्टर है। तो आप बेटा जानते हैं कि व्हेन any row multiplied by corresponding cofactor of another row, then their sums become 0। तो इसलिए बेटा ये 0 आया है। सेम वे से फर्स्ट रो और ये देखो थर्ड रो के कोफैक्टर हैं ये, ठीक है। अभी तो ये कॉलम है, लेकिन अगर इनको आप सिंबॉलिक में देखो तो A31 A32 A33 ये क्या है आपके पास, इन्हीं के A31 A32 और A33 के कोफैक्टर है। तो आपको पता है इफ elements of first row multiplied with any other rows corresponding cofactor, then their sum become 0। लेकिन अगर सेम रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेगी तो 0। देखो सेकंड रो फर्स्ट को करेगी, ये 1 1 है, फर्स्ट रो है तो ये 0 होगा। सेकंड रो सेकंड को करेगी तो ये देखो ये डिटर्मिनेंट ये आएगा। सेकंड रो थर्ड को करेगी तो 0 आएगा। सेम वे पे थर्ड रो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेगी तो ये 0 आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट रो सेकंड को करेगी तो फिर 0 आएगा, लेकिन A31 करॉस्पोंडिंग कोफैक्टर आ गए तो ये डिटर्मिनेंट ये आएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये आपकी वेरिफिकेशन बिल्कुल क्लियर। नाउ दिस वन इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इज कॉमन, ये कॉमन आ गया, तीनों में है, फर्स्ट रो में भी है, सेकंड रो में भी है, थर्ड रो में भी है, मतलब ऑल एलिमेंट में है, बाकी 0 है। अब ये बेटा मैट्रिक्स है, अगर डिटर्मिनेंट होता है तो ऑल एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए, लेकिन अभी ये सॉरी अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो हम एक रो से कॉमन लेते, जैसे फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट ए, सेकंड से डिटर्मिनेंट ए, थर्ड से, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 कॉमन आनी थी। लेकिन अब ये मैट्रिक्स का केस है, ऑल एलिमेंट में डिटर्मिनेंट ए है तो उसको बाहर निकाल दिया और यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ए टू आई। तो पैरेलली आप इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको पहले लेंगे एडजॉइंट ए को, फिर ए को लेंगे, तो यहाँ भी वैसे ही होगा। देखो ये कोफैक्टर हो गए, ये फर्स्ट रो बनेगी। तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी बेटा वही सिचुएशन आएगी। जैसे आपके पास जो प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी को क्लियर कर देता हूँ एक बार, फिर आप लोगों को बता देता हूँ जो पिछली एक्सरसाइज में की थी। मैं इसीलिए बुक को यहाँ सामने रखा है आपके, मैं उस कंसेप्ट को एक बार आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि क्या था वो स्टेप्स, क्या थी वो प्रॉपर्टी, ताकि आपको याद आ जाए। ये देखो A11 A21 A12 A22 A13 A2, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट है और सेकंड रो के कोफैक्टर है, तो वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। सॉल्व कर। अब सिमिलरली वी कैन ट्राई फॉर अदर रो, तो यही इसने कहा कि अदर रो के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको पास देखो, इफ अ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देन देयर सम इज 0। और दूसरी बताई मैंने कि सेम रो और सेम रो के कोफैक्टर, तो दैट इज नथिंग बट दैट बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे ये है A11 A11 A12 A12 A13 A13, so this is nothing but this is equal to delta। ये delta में डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट, ये दोनों प्रॉपर्टी अभी मैं इस प्रोडक्ट को जब आप फाइंड आउट करेंगे A इंटू एडजॉइंट ए, ये ही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई होगी। बीच में एक स्टेप और लिख सकते हैं जो मैंने अभी डिटेल आपको मेंशन की थी। ओके, तो आई होप you have now learned this concept that A into adjoint A is equal to adjoint A into A equal to determinant A into I. So now see, here is a question, one more definition, matlab related to this topic. What is that?
सी है। आगे आगे एक वर्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, न्यू टर्म। तो बेटा एक और डेफिनेशन है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंपल डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, जैसे ये 1 2 4 8 है, 1 8 जा 8 माइनस 4 2 जा 8 मीन्स 8 माइनस 8। अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो दैट इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है तो इट मीन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपको क्लियर हो गया। और नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ये देखिए ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो कोई भी मैट्रिक्स लिखो, ए 1 2 3 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 3 4। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स जब मैट्रिक्स लिखती है, मैंने बताया था स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लो या सिंपल ब्रैकेट यूज करो। जब आपने डिटर्मिनेंट को मेंशन करना है तो ऑलवेज यूज मॉडुलस वैल्यू। तो ये देखिए बेटे 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने एक और पॉइंट सीख लिया, दो नई डेफिनेशन कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर। इससे पहले बेटा मैंने की थी सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती थी, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। So today I am telling you singular matrix and non-singular matrix. So it means in case of singular matrix, determinant of A equal to 0. ठीक है, if determinant A not equal to 0, then that matrix is called non-singular matrix. ठीक है, तो आगे इसके ऊपर एक और सिंपल सी थ्योरम है। क्या है आपके पास थ्योरम, उसको देख लो। हल्का सा स्टेटमेंट क्या कहता है ये, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अब ये कहता है अगर ए और बी बोलता है दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है तो इसको आप अगेन वेरीफाई कर सकते हैं 2 by 2 ऑर्डर की लेके चलो, मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करो, बी और ए को भी मल्टीप्लाई करो, फिर उन दोनों के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। आप देखेंगे कि वो भी नॉन जीरो ही आएंगे। तो इसलिए ये कह रहा है कि ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगी सेम ऑर्डर की। तो एज अ रिजल्ट याद करके रख लो इसको, कहीं भी एमसीक्यू में काम है। ओके, और नेक्स्ट आपने ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में ही मैंने बताया था, द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। ये आपको बताया था ऑलरेडी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगर याद कर लेना पिछले वीडियो में 10th प्रॉपर्टी में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इफ ए बी आर ऑफ nth ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स देन यू कैन फाइंड देयर डिटर्मिनेंट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो डिटर्मिनेंट आता है या फिर इंडिविजुअल का डिटर्मिनेंट, वो बिल्कुल आपको बोलने का मतलब सेम आते हैं। तो यहाँ पर बस कंडीशन ये है, ये डिटर्मिनेंट तो वैसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स का बेटे फाइंड आउट किया जाता है, तो इसको आपने ध्यान देना है कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद तो ये याद हो गया, ये तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी पहले डिस्कस की है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी ऊपर प्रूव किया, क्या बताया था, ये देखिए जो यहाँ रिजल्ट आपको बताया था, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू I। इसी रिजल्ट को ले रहा हूँ, ये देखिए we know adjoint a into a equal to determinant a into I, that you know। डिटर्मिनेंट a से I को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपके पास डिटर्मिनेंट a बेटा आपका आउटसाइड आता है, सी है बोलने का मतलब, इसका मतलब हुआ डिटर्मिनेंट a इंटू I। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपके पास I है। तो क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। प्लीज थोड़ा सा माउस से लिख रहा हूं तो बी कॉपरेट, है ना।
अच्छी हैंडराइटिंग नहीं आ रही है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो बोलने का डिटर्मिनेंट a इंटू आई, अब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आपको पता ऑल एलिमेंट को करेगा, 1 को करेगा तो डिटर्मिनेंट a आएगा, 0 को करेगा 0 आएगी, आगे 0 आएगा, सो सेम ईयर 0, फिर डिटर्मिनेंट a 0। यही इसने बताया कि a इंटू एडजॉइंट a, दिस बिकम दिस। अब अगला जो काम है, जो आप लोगों को क्लियर कंसेप्ट करना है, कि मैं दोनों का साइड का डिटर्मिनेंट लूंगा। यहाँ से देखिए, ये देखिए, राइटिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोथ साइड। तो ये आ गया बेटा आपका एडजॉइंट a इंटू ए होल डिटर्मिनेंट, और यहाँ जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी उसका भी डिटर्मिनेंट। ये देखो, सिर्फ साइन यूज किए डिटर्मिनेंट। नाउ सी, ये बेटे अभी आपको पिछले रिजल्ट में क्लियर कर दिया क्या, कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट है ए बी का, उसको सेपरेट कर सकते हैं। ये देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बोलने का मतलब पिछली बार भी बेटा अपने लास्ट टाइम 10th प्रॉपर्टी में किया। एंड नाउ सी, दिस बिकम अ डिटर्मिनेंट नाउ, एंड यू नो इन केस ऑफ अ डिटर्मिनेंट, अगर बेटा मैंने कुछ कॉमन लेना होता था तो एक रो से कॉमन आएगा। इसका मतलब फर्स्ट रो से कॉमन आएगा डिटर्मिनेंट ए, सेकंड रो से भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन आएगा, और थर्ड रो से भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन आएगा। तो ये जो लिखा है हमने कि वाई दिस, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, टेकिंग फ्रॉम फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड देन थर्ड रो, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए क्यूब आपका कॉमन आ गया, और इनसाइड यू विल गेट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे, जब भी आपके पास इवन वन साइड 0 हो, तो मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट ही डिटर्मिनेंट आएगा। और सिंप्लीफाई करके देखो, 1 इंटू 1 0 इसको करेंगे, बाकी तो 0 ही आएंगे, तो 1 1 जा, और सीधा याद है तो डायरेक्टली बोलने का दिस डिटर्मिनेंट इज 1। नाउ सी, हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव किया एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए क्यू। तो एक डिटर्मिनेंट ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अब बेटा मैंने यहां पर जो स्पेशली था, एक ही ऑर्डर की मैट्रिक्स ली थी 3/3, तो यहाँ आया पावर 2। अगर ये ऑर्डर मान लो ज्यादा होता, एन ऑर्डर होता, तो यहाँ कॉमन क्या आना था, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर एन, फिर ए का कैंसिल होना था, तो क्या बन जाना था, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर एन माइनस 1। सो दिस रिजल्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन बनता है, आपको कई बार डिटर्मिनेंट ए दिया होता है, उसकी वैल्यू गिवन होती है, आपसे पूछा होता है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड हुज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2, तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालिए। तो सिंपल आंसर क्या आएगा, अगर आपको मैं डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 दूं, ऑर्डर मैंने 3 दिया, तो ये 2 स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्लीज जहां भी कहीं समझना है तो हल्का सा बैक कर लिया करो, अंडरस्टैंड कर लेना दोबारा कि सर ने क्या कहा। मैंने अभी जो आपको ये बताया वो क्या बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप अच्छे से याद रखें। आज के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1। अब बेटा जिस चीज के लिए सारा वर्कआउट हो रहा है, हम पहुंचने वाले हैं उस टारगेट में। अभी आप देखिए क्या है, एक और रिजल्ट आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इवन कहां पर, जहां हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की थी, वहां आपको याद होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए यूज की थी, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उसके लिए हमने ये वर्कआउट किया था, तो उसको अब आप अंडरस्टैंड करेंगे, मैं कैसे उसको बताऊंगा अभी। ओके, तो यहां से बेटा आपको अब मैंने बताया ये लास्ट रिजल्ट क्या, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, a square matrix A is invertible if and only if A is a non-singular matrix। एक चीज ये ध्यान रखना है कि बोलने का मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो
उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो, मतलब नॉन सिंगुलर का मतलब यू ऑल नो क्या होता है नॉन सिंगुलर? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो then your matrix is called non-singular matrix. A square matrix A is invertible if and only if A is a non-singular. मैंने अभी आपको जो बताया कि पिछली बार क्या रिजल्ट किया था, आपको वहां बताया था ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इक्वल टू आई, देन वन इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ अदर. तो मैं उसी रिजल्ट को यहाँ फिर यूज करना चाहूंगा कि लेट ए बी अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and I be identity matrix of order n. Then there exists a matrix B. अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब फिर ये ए बी इक्वल टू बी ए किसके इक्वल होना चाहिए? आई के इक्वल. ये रिजल्ट मैंने कहा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में भी किया है. जब हम कहते थे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इक्वल टू आई एंड वन इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ अनदर. तो इसका मतलब अगर इन्वर्टिबल ही है तो नेचुरली इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं बोथ साइड. क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. 10th प्रॉपर्टी जो आपको बताया. ठीक है, कि आप डिटर्मिनेंट को सेपरेट कर सकते हैं लाइक दिस. और डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज नथिंग बट इक्वल टू 1. अब आप देख लो ये सिंपल बन गया. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 1. तो बोलने का मतलब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा तो ये बड़ा क्लियर है कि यहाँ पर आपके पास, क्योंकि अगर मैं डिटर्मिनेंट बी निकालता हूँ इसका मतलब बोलने का दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो वो 0 तो हो ही नहीं सकता. इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट बी आल्सो नॉट इक्वल टू 0, बट आई एम इंटरेस्टेड इन ए, सो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0. क्योंकि नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट ही बेटे 1 होता है. अगर दोनों में से एक भी 0 होगा तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0. तो इसलिए ये प्रूव हो गया. अब इसका मतलब चलो ठीक है, ये तो हमें पता लग गया अब कि कोई मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो वो कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर. उल्टा कर लेते हैं कन्वेंशनली कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और व्हाट इज दैट इनवर्स उसको भी निकाल लेंगे. तो देखिए लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर देन डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0. क्लियर दिस? अब यहाँ से कन्वर्स चला. अब आपके पास ये थ्योरम आपको ऑलरेडी बताई हुई है. ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई. नाउ सी, अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डिटर्मिनेंट ए है राइट साइड में इसको लेफ्ट में लिया और लेफ्ट में लाने से क्या बन गया? ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, मतलब डिवाइड कर दिया. तो इसके नीचे भी आएगा, ये भी इक्वल है तो इसके नीचे भी आएगा इंटू ए. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी आपके सामने हो गया. क्या अभी जो आप लोग जानते हैं कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इक्वल टू आई, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इक्वल टू आई, then one is called the inverse of other. One is called the inverse of other. तो इसको समझ जाए. ये आपके पास हो गया. ये देखो ये a इंटू बी, इधर इसको कहो b, b इंटू a इक्वल टू आई. तो इसका मतलब b is called the inverse of a. So what is b? b is nothing but this. तो ये आपके पास b हुआ और 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a. और b को हम क्या कह रहे हैं? a इनवर्स. तो इसका मतलब आज मैंने एक आपको फार्मूला डिराइव करके बता दिया कि व्हाट इज a इनवर्स. नंबर 1, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी. इसका मतलब सबसे पहले आपको a दिया होगा, आप क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट a. और डिटर्मिनेंट a क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0. आप लिखेंगे यस इनवर्स एग्जिस्ट. अगर वो 0 हो जाएगा तो इनवर्स नॉट एग्जिस्ट. बस क्वेश्चन खत्म. ठीक है. और फिर एडजॉइंट ए अभी आपको बता दिया क्या कि कोफैक्टर निकालेंगे. वो पिछले एक्सरसाइज में सभी ने काम किया है. कोफैक्टर निकालो, उस कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ए. और डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो बेटा, वो ए इनवर्स. तो आज का सिर्फ जो टोटल टॉपिक था वो यही था कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. तो इसमें कुछ रिजल्ट भी आपको बीच में मिल गए. देखो मैं जल्दी से हल्का सा आपको एग्जांपल पे दिखा दूं. ये ए दिया हुआ है, पहला तो ये वेरिफिकेशन है,
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू कैन वेरीफाई। एडजॉइंट के लिए देखो सारे कोफैक्टर निकालना आने चाहिए, तभी आपका एडजॉइंट बनेगा। अब इसमें सीधा डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिख लो या फार्मूले के साथ लिख लिया करो। एडजॉइंट ए क्या होता है, ए आई जे का होल का ट्रांसपोज, ठीक है कि नहीं। तो आप इसको रिजल्ट को याद रख लो अच्छे से, एडजॉइंट ए इज नथिंग बट ए आई एंड जे होल ट्रांसपोज। ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसका ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट। तो बेटा आपको कोफैक्टर निकालना आते हैं। फिर A11 लिखो, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32, A33 और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करने का रोज के कॉलम बना लो और कॉलम के ऑटोमेटिकली रोज बनते जाते हैं। इस तरह से आप कवर कर लेंगे। एडजॉइंट ए निकल गया, इनवर्स निकालना है तो बस डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर लो, वो तो सबसे पहला काम करना। तो आज आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करेंगे। लेक्चर को देख लेना, कहीं भी अगर डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कॉल करके पूछ सकते हैं कुछ भी डाउट। तो देखो ये ए बी दिया, वेरीफाई ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आप सभी काम कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करना, पहले ए बी निकाल लो, फिर ए बी इनवर्स निकाल लो, ठीक है, या इंडिविजुअल के निकाल, ए का इनवर्स निकाल लो, बी का इनवर्स निकाल लो। आप सारे ये काम कर सकते हैं क्वेश्चन में। वेरीफाई करिए। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आप मेरे से बेटे इन क्वेश्चन को दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो मेन वर्क रहेगा आपका ए एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना और फिर इनवर्स, ठीक है। आप कम से कम इन स्टेप्स को फॉलो करो और वेरिफिकेशन भी है। जब इनवर्स सीख गए तो ये सिंपल सी जो वेरिफिकेशन दी हुई है इसको भी कर सकते हैं। हाँ, ये 13th क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में क्लियर कर दूंगा आपको कि कैसे करना है, ठीक है। ये अलग से अप्रोच से ये होंगे तो इस पे हम बाद में बात करेंगे, बट अदरवाइज यू कैन डू अदर क्वेश्चन। तो एटलीस्ट मीन्स अप टू 11 क्वेश्चन और इवन 12, up to 12 question you can do this exercise 4.5। मैं फिर कह रहा हूँ, फर्स्टली एडजॉइंट ए, आज का जो मेन टॉपिक था वो यही था कि व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए मैंने क्या बताया, कोफैक्टर्स and its transpose। Then first find the cofactor, make the matrix and find the transpose। वो 2/2 का शॉर्टकट भी दिया और 3/3। उसके बाद मैंने ए इनवर्स आपको सिखा दिया, बीच में सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक आपको रिजल्ट और दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 if n is the order। Clear? So I hope that you will do this chapter nicely, and if you have still any doubt, you can ask me, you can call me. So thank you very much.